name, sir? Rajiv Kaushal, CA. I am President District Taxation Bar Association, Direct Taxes. ਸਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਜਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਡਿਟੇਲਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮਿਕਸ ਬਜਟ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਬਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਓਨਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2025 ਲਿਆਂਦਾ ਰੀਵੈਂਪ ਕਰਕੇ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਉਹ 1/4/2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਹ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਟਿਲ ਦਿਸ ਡੇਟ ਆਫ 1 February no new rules and new forms are till date notified. So why it is late, I don't find any reason behind that. Second ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈਥ ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸੀਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਹੋਏਗੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਝ TCS ਜਿੱਦਾਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪੈਕੇजेस ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ TCS ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 5% to 20% ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ 2% ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ LRS ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰਿਮਿਟੈਂਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੇਟ ਆਫ TCS was 5% which is now reduced to 2%। and there was a confusion ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 194C ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ 2% ਜਾਂ 1% ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਰਿਵਾਈਜ਼ਿੰਗ ਆਫ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਬੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਕਲੈਰੀਕਲ ਐਰਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੀਰੀਅਡ ਮਿਲਦਾ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ 31 ਮਾਰਚ ਆਫ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨੋਮੀਨਲ ਫੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਰਸ਼ ਇੱਕੋ ਮਹੀਨੇ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਫਾਰਮ 31 ਜੁਲਾਈ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੂੰ ਔਰ ਅਸੈਸੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੰਮ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 195 ਆਫ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਾਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ TDS ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ TAN ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ TDS ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਓ ਨੋ TAN ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੇਜ ਫਾਰਮ ਸੀ, ਉਹੀ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਔਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣੀ, ਨਾਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣੀ ਸੌਖੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ PMLA ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੁਝ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫੋਰਨ ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰਸ ਆਫ ਫੋਰਨ ਇਨਕਮ ਦੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਪੈਨਲਟੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 6 months ਲਈ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਲਕਮ ਸਟੈਪ। ਔਰ ਕੁਝ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਔਰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨਸ ਅੰਡਰ ਦਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। As per my legal understanding, this is not very welcome step. Why? Penalty और assessment ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ combine ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਤਾ, which by any standard of law is not correct. Penalty by definition has to be levied where some reasonable cause is not there to commit that default. ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ, ਪੈਨਲਟੀ ਲਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਔਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਇਨ ਲਾਅ ਆਈ ਪਰਸਨਲੀ ਥਿੰਕ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਲਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਐਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ 20% ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10% ਕਰਤਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਐਸਟੋਨਿਸ਼ਿੰਗ ਫੈਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੀਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਪੈਨਲਟੀ ਔਰ ਫੀਸ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫੀਸ ਇਜ਼ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ। ਪੈਨਲਟੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਲੱਗੀ ਠੀਕ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਂਡ ਯੂ ਸੀ ਕਿ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਆਈ ਡੂ ਨੋਟ ਟੇਕ ਇਟ ਵੈਰੀ ਵੈਲਕਮ ਸਟੈਪ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ 80P ਦੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵਧਾਇਆ ਐਜ਼ could I understand, ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਔਰ ਅਦਰ ਆਈਟਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇੰਟਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਵੀਡੈਂਡਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀਤਾ। IT ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਫੋਰਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਨਾਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਵੈਲਕਮ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕਿ ICDS ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਸਮ ਐਕਸਟੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੈਲਕਮ ਸਟੈਪ ਹੈ ਬਾਈਬੈਕ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਐਬਜ਼ਰਡ ਜੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਤੀ ਸੀ ਡੀਮ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੀ, ਉਹ ਸਮਾਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਡਨ ਅਵੇ ਕਰਕੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਸ ਚ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਡਿਟੇਲਸ ਕੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲਡ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਟ ਆਈ ਪਰਸਨਲੀ ਥਿੰਕ that policy which they had created earlier, now they have tried to remove that। TCS ਰੇਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਆਈਟਮਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। STT ਰੇਟ ਵਧਾਤੇ ਨੇ, this is very unfortunate for stock market। STT ਰੇਟ ਵਧਾਣਾ, when you see STT was levied, it was levied for the reason कि long term capital gains taxes on equity were exempted। ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ STT ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਸ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ STT ਵੀ ਵਧਾਤਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਬੈਡ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਰੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲੈਵੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਂਦਾ। ਫਾਈਨਲੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਆਈ ਫੇਲ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਾਈ MAT is final tax with effect from 1st of April 2026, whereas MAT was ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੇਸਿਸ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਤੋਂ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਟੈਕਸ ਲੈ ਲਿਆ, credit of it would be given in the due period। When you say MAT is a final tax, that means you have created a parallel tax regime which is, I personally think, against the provisions of the law। So these are the key points which I could take। Maybe certain things I could not understand properly, which would be dealt with in detail when I go through the things। Okay, sir, ओवरऑल कह सकते हैं कि ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। नहीं, ऐसी कोई गल नहीं है। बजट ਜਿਹੜਾ है अच्छा है, बजट ठीक है। ओवरऑल बड़ी बैलेंस्ड एक्चुअली लंबी दवाई देने की कोशिश की जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਹਸਪੀਟਲਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਫਾਰਮ ਇਨਕਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, MSME ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੈਪੈਕਸ 'ਚ 12.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ, ਯੂ ਸੀ ਕੈਪੈਕਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੈਟ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਨ ਦ ਸਿਸਟਮ। ਓਵਰਆਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟੂ ਬੀ ਗਿਵਨ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਔਰ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਬੈਲੈਂਸਡ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਬਜਟ। ਆਈ ਪਰਸਨਲੀ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਝ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆਊਟਲੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਖਰਚਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਖਰਚਾਂਗੇ। 2-4 ਤੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਟ ਬਜਟ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ। ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਦੇਖੋ, ਆਈ ਐਮ ਨੋ ਪਰਸਨ ਟੂ ਗਿਵ ਐਨੀ ਨੰਬਰ ਟੂ ਐਨੀ ਬਜਟ, ਬਟ ओवरऑल दिस इज अ गुड बजट, आई विल से दिस। और मेरा नाम सी रचित भंडारी है। मैं इस बजट को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। इसमें बहुत 2-3 चीज़ें बहुत ही अच्छी हुई हैं जी। पहले तो उन्होंने जो ओवरसीज़ ट्रैवल के ऊपर जो TCS लगाया था, जिसका रेट आगे 5% भी था, 20% था, उसको कम करके 2% कर दिया, जिससे आपको ईज़ ऑफ बिजनेस मिलेगा। जो दूसरी चीज़ें इन्होंने की है, जो रिटर्न की जो हमने रिवाइज़ की डेट थी वो 31/12 तक हम अपनी रिटर्नें रिवाइज़ कर सकते थे, अब उसकी डेट बढ़ा के इन्होंने 31 मार्च कर दी है। जो तीसरी चीज़ इन्होंने अच्छी की है कि जो इंडिविजुअल फाइलिंग की ITRs की डेट थी वो 31 जुलाई होती थी, और जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज थी जिनका ऑडिट नहीं होता उनकी भी 31 जुलाई की थी, उसकी डेट बढ़ा के इन्होंने 31 अगस्त कर दी है। जो TCS और NRI के है जो काटना पड़ता था उसके लिए TDS का नंबर लेना पड़ता था, अब उनके ने बोल दिया कि TDS का नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप पैन बेस्ड ही डिडक्शन कर सकते हैं। जो एक मेजर उन्होंने जो चेंज किया है, उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर को एक बड़ा सेटबैक दिया है। आगे मैट के ऊपर हमें क्रेडिट मिलता था। देयर वर 2 वेज ऑफ टैक्सेशन, वन इज नॉर्मल टैक्सेशन एंड वन वाज मैट। मैट में हायर टैक्सेशन थी, पर उन्होंने अब उसको फाइनल टैक्सेशन कर दिया कि जो मैट के ऊपर आप हायर टैक्स देते थे उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते थे, अब उन्होंने मना कर दिया। जो बैलेंस आपके पास मैट पड़ा हुआ है उसको 4 सालों के अंदर आप क्लेम कर सकते हैं जी। एक उन्होंने बोला है कि जो अपील फीस आपकी थी वो 20% आगे होती थी, अब उसको रिड्यूस करके 10% कर दिया गया है जी, और इंटरेस्ट नहीं लगेगा आपको अपील पे पीरियड के अंदर।
तो ओवरऑल आई फील दिस बजट इज़ वेरी गुड। और फॉरेन एसेट्स जो हमारे डिस्क्लोज नहीं किए थे उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा रिप्लाइज किया है कि जिसकी फॉरेन इनकम डिस्क्लोज नहीं है वो एक नॉमिनल सा टैक्स दे के और फीस दे के और पेनल्टी की शेप में आप उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं। 6 मंथ्स का पीरियड दे दिया है। ऐसे ही उन्होंने फॉरेन एसेट्स के डिस्क्लोजर दे दिया। सो आई फील दिस बजट इज़ मोर लाइक अ रेशनलाइज बजट और आपको प्रोसिक्यूशंस और उससे बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। एंड आई रेट दिस बजट एज ए गुड बजट। सर एक ये भी बताया जा रहा था कि कोई एक फीस लगती थी उसको अब इन्होंने जैसे फाइन लगता था उसको एक फीस इन्होंने बहुत चेंज किया कि नॉन ऑडिट की जो पेनल्टी लगती थी आगे उसका उसका नाम चेंज करके इन्होंने फीस कर दिया है। तो मतलब सबको लगी तो सबको ही पर लगेगा वो उसका जो सेक्शन का नाम है उसको पेनल्टी से चेंज करके उसको फीस में कन्वर्ट कर दिया है तो वो आपको देनी ही पड़ेगी वहाँ पे करके। तो आगे वो कई कुछ को लगती थी अब सबको लगी जाएगी। बट इन्होंने जो बढ़ाया है एसटीटी का रेट जो डेरिवेटिव्स के ऊपर है 0.02 से बढ़ा के 0.05 कर दिया और ऑप्शंस के ऊपर जो एसटीटी का रेट है 0.15 कर दिया। आई फील कि स्टॉक मार्केट में जो कैपिटल मार्केट की मूवमेंट है इट विल बी अ ग्रेट सेटबैक फॉर द मार्केट। जो मार्केट सुबह ग्रीन में घूम रही थी इस वक्त इट हैज मूव्ड इनटू द रेड और ब्लडी रेड हो चुकी है। 1000 पॉइंट सुपर मार्केट गिरी हुई है। तो आई फोरसी कॉर्पोरेट के लिए नेगेटिव रहेगा। अदरवाइज फॉर इंडिविजुअल सेक्टर्स इट इज़ अ गुड बजट। आपकी प्रोसिक्यूशन और पेनल्टीज को बचाया गया है। पिछली बार अगर बात करें तो प्लान 3 या 4 लेयर्स में जो बजट आया था जो टैक्स लेयर आई टैक्स रेट सेम है। टैक्स रेट्स में उन्होंने कोई चेंज नहीं किया जी। वी वर एक्सपेक्टिंग कि पार्टनरशिप फॉर्म्स का टैक्स रेट कम करेंगे बट देयर इज नो चेंज। सिर्फ उन्होंने कॉर्पोरेट्स को सेटबैक दिया है कि जो मैट लगा दिया उसको फाइनल टैक्स बना दिया। दैट इज द बेसिक सेटबैक। अदरवाइज देयर इज नो चेंज इन द टैक्स रेट्स वहाँ पे। थैंक यू। सी रविकांत गुप्ता। 2 मिनट सर क्या नाम है और क्या कहना चाहोगे जो आज का बजट है? आम सी रविकांत गुप्ता। आज का जो बजट है इस बजट के बारे में मेरा सबसे पहला जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जैसे कि हम पिछले 12 साल से सुनते आ रहे हैं कि ये सरकार जो है ना इसकी शब्दावली बहुत अच्छी है। ये जो भी कुछ ना शहद में भिगो के और बड़ी अच्छी शब्दावली। और आज भी वो हमारे वित्त मंत्री जो हैं वो अपनी पीठ खुद ही थपथपा रहे हैं कि हमारी पॉलिसीज़ की वजह से सरकार की पॉलिसीज़ की वजह से पॉवर्टी इरेडिकेशन हो गई अभी। और दूसरी तरफ खुद ही अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को जो है 5-5 किलो अनाज दे रहे हैं। अब ये या तो 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं या पॉवर्टी इरेडिकेशन हो गई। ऐसी मतलब ये वर्ड मैडम ने यूज़ किया अपनी उसके अंदर। जो कुछ अच्छी बातें हैं कि यूथ के ऊपर फोकस किया गया कि यूथ की स्किल एनहांसमेंट के लिए हब्स बनाए जाएंगे। क्या कहाँ बनाए जाएंगे, कैसे बनाए जाएंगे, कि स्पेसिफिक अमाउंट जैसे पंकज जी भी बता रहे थे इन्होंने कोई अमाउंट स्पेसिफाई नहीं करी है। और हम क्योंकि पंजाब में बैठे हैं, लुधियाना में बैठे हैं, लुधियाना हब है इंडस्ट्री का। एक बार भी मैडम ने पंजाब का नाम नहीं लिया पूरे बजट के अंदर कि पंजाब के लिए हम क्या कर रहे हैं। पंजाब के साथ और काफ़ी सारी स्टेटों का नाम लिया और कुछ का नहीं भी लिया, लेकिन पंजाब का कहीं कोई नाम नहीं लिया। पंजाब की जो इंडस्ट्री है, जो साइकिल इंडस्ट्री है, जो कि जान है, जो साइकिल जो है आज भी एक गरीब का एक व्हीकल है, साइकिल इंडस्ट्री का कहीं कोई नाम नहीं लिया। और योगा के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी भी बड़ी काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रमोट करना चाहते हैं योगा को। अच्छी बात है, योगा हमारा युगों से चला आ रहा है, उसके बारे में फोकस किया गया। हाँ, क्योंकि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो सीए के हिसाब से काफ़ी कुछ इनकम टैक्स के अंदर, क्योंकि हमारा नया इनकम टैक्स एक्ट भी नया लागू होने जा रहा है 1/4/2026 से। इनकम टैक्स के अंदर काफ़ी कुछ स्ट्रीमलाइन किया है। जैसे एक अच्छा स्टेप ये है कि जहाँ पे प्रोसिक्यूशन छोटी छोटी बातों के ऊपर हमारा जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट है उसके अंदर प्रोसिक्यूशन की प्रोविज़न है, जबकि हमारे जो एसएससीज हैं, हमारे जो देश के नागरिक हैं, वो कहीं भी कोई जानबूझ के, जरूरी नहीं कि सारी जो मिस्टेक्स हैं, सारी जो गलतियां हैं वो इंटेंशनल हों, वो कई बार अनइंटेंशनल मिस्टेक्स भी होते हैं, उसमें भी प्रोसिक्यूशन की प्रोविजन थी। उसको स्ट्रीमलाइन कर दिया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कि उसको प्रोसिक्यूशन की जगह आपको पेनल्टी लग जाएगी। तो पेनल्टी जो वो एक अच्छा स्टेप है, उसके हम वेलकम करते हैं एज एन प्रोफेशनल एंड एज एन सिटीजन ऑफ दिस ग्रेट कंट्री। अच्छी बात है। और ओवरऑल जैसे कि बजट है, और एक ये बजट जो है जो मुझे समझ आ रहा है शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट के लिए, क्योंकि आज की डेट में हर व्यक्ति जो वो स्टॉक मार्केट के साथ कहीं ना कहीं लिंक्ड है, शायद आप लोग भी होंगे। तो शेयर मार्केट के लिए ये बजट बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट आज की इस वक्त तो नज़र आ रहा है, क्योंकि एसटीटी वगैरह जो है जो उसके ऊपर टैक्स लगता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए, जो जैसे 0.2 से 0.5% कर दिया। सो इट इज़ मोर देन डबल। सो इट विल बी ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द शेयर मार्केट। और उसके अलावा जो एमएसएमई है, आम जनता है, पार्टनरशिप फर्म्स हैं, उनके ऊपर कोई फोकस नहीं है। इस सरकार का फोकस
कॉरपोरेट्स के ऊपर है, और कॉरपोरेट्स में भी जो मीडियम साइज कॉरपोरेट्स हैं या स्टार्टिंग लेवल के कॉरपोरेट्स हैं उनके ऊपर फोकस नहीं है। इनका कॉरपोरेट्स के ऊपर, बड़ों के ऊपर कॉरपोरेट्स के ऊपर फोकस है कि जितना भी जो बेनिफिट है, वो गेन है, वो बड़े कॉरपोरेट्स को ही मिलता है। इसके अंदर जो भी जो बजट के अंदर जो प्रोविजंस की जा रही हैं वो बड़े, बहुत बड़े कॉरपोरेट्स जो हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता बिकॉज आई डोंट वांट टू गिव एनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट, क्योंकि मैं कह सकते हैं कि कितने ना कितने की ओवरऑल बड़े घरानिਆਂ ਨੂੰ फायदा, बड़े घरानों को ये बड़े घरानों को बेनिफिट देने वाला ही बजट है। बेसिकली जो बातें की गई हैं वो शहद में लपेट के की गई हैं कि हम यूथ के लिए भी करेंगे, हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी करेंगे, हम विकलांग के लिए भी करेंगे, हम फार्मर्स के लिए भी करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसमें कितना पैसा खर्च करेंगे, ऐसी कोई प्रोविजन स्पेसिफिक क्लियर कट नहीं है। पॉलिसी शुड बी क्लियर कट कि जी हम ये करेंगे और ऐसे करेंगे। हम आपके जैसे फार्मर्स की बात हो रही है, अब फार्मर्स के बारे में कि हम फार्मर्स की इनकम, हमारी ये सरकार जब आई थी, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिकल नहीं हूँ, तो हमने जी फार्मर्स की इनकम डबल करनी थी, नहीं हुई, हम सबको पता है। लेकिन अब आज फार्मर्स की बात हुई, इस बजट के अंदर फार्मर्स की इनकम बढ़ाने की बात हुई, पंजाब का नाम नहीं लिया गया, जबकि पंजाब जो है वो फूड बाउल है हमारे देश का, ग्रीन रेवोल्यूशन देने वाला पंजाब है, और फार्मर की बात और पंजाब की बात ना हो तो ये मेरे को लगता है कहीं ना कहीं हम लैग कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू। उनका लेनी एक